Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. So, my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Today, I will discuss series 5. In this series, I will discuss 25 MCQ questions on administration and finance. So, my friends, you know that two examinations, principal examinations round the corner. One is the UPSC principal exam and another one EMRS principal exam. And also this video would be useful for KVS, NVS and other state board principal exams. So my request is you go through my video properly. So definitely the pattern is latest one and you can get some nice questions and it would be very useful for you. And those are preparing for departmental promotion exams also, it would be useful for them. So now I am going to discuss. Question number 1. What is the monetary limit of petty losses which need not be reported to the next higher authority? 4 choices are there. It is rupees 10,000, rupees 15,000, rupees 20,000, rupees 25,000. Your answer is bit A, rupees 10,000. So यदि रुपीज़ अप टू रुपीज़ 10,000 का लॉसेस होता है तब there is no need to report to the next higher authority. Okay, answer is bit A. Question number 2. When loss of government money arises due to erroneous or irregular issue of checks, it should be reported to dash head of office, head of the department, Controller General of Accounts, Comptroller and Auditor General. Your answer is bit C, Controller General of Accounts. Very important question related to the general financial rule. यदि कोई इरेगुलर इशू ऑफ चेक्स और कोई भी चेक में ऐसा एरर्स है और प्रॉब्लम है, डेफिनेटली देयर इज लॉस ऑफ गवर्नमेंट मनी. So there is arises of loss of government money. In this case, it must be reported to Controller General of Accounts. Answer is bit C. Question number 3. What is the monetary limit in case of theft, fraud, etc.? Above which the case is to be reported to the police for investigation. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि चाहे थेफ्ट और चाहे फ्रॉड केस में तो कितना मॉनेटरी लिमिट है, सो उससे ज़्यादा होगा तो कंप्लेन लॉन्च किया जाएगा पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए. 4 choices are there. रुपीज़ 50,000, रुपीज़ 75,000, रुपीज़ 1 लाख, रुपीज़ 2 लाख. आंसर इज बिट ए, रुपीज़ 50,000. ओके, सो इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट if there is theft or fraud, okay, and the monetary limit is above rupees 50,000, then the case must be lodged in the police station for investigation. Answer is bit A. Question number 4. State the monetary limit up to which any loss of immovable property by fire, flood, etc. can be reported by a subordinate authority to the next higher authority. It is up to 1 lakh, up to rupees 5 lakh, up to rupees 2,50,000, up to rupees 50,000. Here again answer is bit D, up to rupees 50,000. Okay, is the monetary limit up to which any loss of immovable property by fire, flood, etc. can be reported by a subordinate authority to the next higher authority. It is up to rupees 50,000. Answer is bit D. Question number 5. ये CCA rules 1965 सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 रिलेटेड है. जो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस था रिलेटेड टू जनरल फाइनेंशियल रूल. इफ 2 penalties, one of lower order and another of higher order, are imposed on an employee, the 2 penalties shall run bit A as stated in the later penalty order. Second one, concurrently if nothing stated in the order. Bit C, separately if nothing stated in the order. D, both A and B. तो यहाँ पर आंसर जो है वो डी है, बोथ ए एंड बी आज स्टेटेड इन द लेटर पेनल्टी ऑर्डर. जो सेकेंड पेनल्टी ऑर्डर है वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि
लोअर ऑर्डर का पेनल्टी ना हायर ऑर्डर का पेनल्टी के ऊपर प्रोसीडिंग चलेगा, कि बोथ कंकरेंटली चलेगा, साइमल्टेनियसली चलेगा? तो दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। उसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। When any disciplinary case crops up during the currency of an earlier penalty, the discipline authority should clearly indicate in the punishment order whether the two penalties should run concurrently or the subsequent penalties should be implemented only after the expiry of the first penalty. तो जो सेकेंड पेनाल्टी पनिशमेंट ऑर्डर है उसमें क्लियरली मेंशन होगा। ओके, एक पेनाल्टी चल रहा है, प्रोसीडिंग एक पेनाल्टी के ऊपर चल रहा है और एक पेनाल्टी लग गया, तो उस केस में जो सेकेंड पेनाल्टी केस में जो पनिशमेंट ऑर्डर इशू होगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि दोनों बोथ द पेनाल्टीज साइमल्टेनियस कंकरेंटली और साइमल्टेनियसली इट मीन्स प्रोसीडिंग विल बी गोइंग ऑन। और सेकेंड वन इट इज ऑल्सो ये भी मेंशन हो सकता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट पेनाल्टी देन सेकेंड पेनाल्टी विल बी प्रोसीडेड, राइट। Next, question number 6. What will be the entitlement of pay and allowances of a government servant if he was under suspension and dies before conclusion of disciplinary or court proceedings instituted against him? Full pay and allowances, half pay and allowances, only basic pay, only subsistence allowance? Answer is B type, full pay and allowances. Suppose कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वो ऑलरेडी सस्पेंडेड है और अभी प्रोसीडिंग चल रहा है और प्रोसीडिंग के टाइम में उसका डेथ हो जाता है, तो इसमें रूल है कि जिस डेट में उसको सस्पेंशन किया गया था और डेथ पीरियड तक वो जो टाइम है उसको ड्यूटी माना जाएगा और उसको जो सैलरी मिल रहा है, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, क्लियर, जब फुल पे एंड अलाउंसेस मिलेगा उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस को एडजस्ट करके और जो बाकी होगा तो उसका जो नेक्स्ट कीन है उसे उसका जो सपोज वाइफ है कि हस्बैंड है उसको दे दिया जाएगा, राइट। तो उसके ऊपर आंसर है बी टाइप, फुल पे एंड अलाउंसेस। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो यहां पर क्या होगा, द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ सस्पेंशन एंड द डेट ऑफ डेथ शैल बी ट्रीटेड ड्यूटी। जिस डेट में सस्पेंशन हुआ और उसका जो डेट है, जो डेथ डेट है, तब तक जो पीरियड, जो सस्पेंशन पीरियड चल रहा था वो उसको ड्यूटी माना जाएगा। इट मस्ट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। द फैमिली ऑफ डिसीज्ड शैल बी पेड फुल पे एंड अलाउंसेस फॉर द पीरियड आफ्टर एडजस्टिंग अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस एटसेट्रा ऑलरेडी पेड। हम जानते हैं कि सस्पेंशन पीरियड में सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, तो उसको एडजस्ट करके और जो बाकी होगा वो उसका फैमिली को मिल जाएगा, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 7. Whether departmental action can also be taken when the same matter has been taken up in the court of law for prosecution of government servant concerned. जैसे यहां पर जो क्वेश्चन है, अभी सपोज कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर, क्या उसी मैटर में डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है कि नहीं, वही क्वेश्चन है। तो 4 choices are there. Yes, no, departmental inquiry to be stayed, B, D, none. It is answer is B, yes. यदि कोर्ट में प्रोसिक्यूशन चल रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट और सेम मैटर के ऊपर डिपार्टमेंटल एक्शन ऑल्सो भी लिया जा सकता है। सो यही क्वेश्चन पूछा है, क्या डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा यदि प्रोसिक्यूशन चल रहा है कोर्ट में अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट? हाँ, लिया जा सकता है, डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा। आंसर इज बी, yes. चलो, क्वेश्चन नंबर 8. Normally 2 penalties are not to be imposed for the same offense, but recovery can be ordered along with any other penalty. एक्चुअली हम जानते हैं CCA रूल्स 1965 में सेम ऑफेंस के ऊपर 2 पेनल्टी का प्रोसीडिंग नहीं चल सकता, क्योंकि वो थोड़ा स्ट्रेन और स्ट्रेस हो जाता है। Okay, on same offense, if more than one penalty imposed, then it would be too difficult for the concerned employee, okay, to tolerate the strain or to bear the strain. इसलिए
हो सकता है, मगर जो रिकवरी होता है बेसिकली जो लॉस ऑफ द गवर्नमेंट इट कैन बी रिकवर्ड, हम जानते हैं माइनर पेनल्टी होता है, वो रिकवरी के साथ और कोई पेनल्टी लग सकता है, राइट, बट रिकवरी कैन बी ऑर्डर्ड अलॉन्ग विथ एनी अदर पेनल्टी। यहाँ पर जो आंसर है बिट ए एस। ओके, जो रिकवरी है, सपोज गवर्नमेंट डिटेक्ट करता है कि वो कंसर्न एम्प्लॉई के वजह से कुछ गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है तो रिकवरी होगा। तो रिकवरी एक पेनल्टी होता है, माइनर पेनल्टी हम जानते हैं, और उसके साथ और कोई पेनल्टी हो सकता है, मगर रिकवरी को हम छोड़कर और कोई एक ही साथ हम 2 पेनल्टी लगा नहीं सकते। ओके, आंसर इज बिट ए एस। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कैन 2 पेनल्टीज बी इम्पोज्ड फॉर 1 लैप्स और ऑफेंस? नॉर्मली नो नीड टू इम्पोज 2 पेनल्टीज एट ए टाइम, बट रिकवरी कैन बी ऑर्डर्ड अलॉन्ग विथ एनी अदर पेनल्टी हायर देन द रिकवरी। रिकवरी तो एक पेनल्टी है, माइनर पेनल्टी, और उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो लग सकता है। द अथॉरिटीज शुड बियर इन माइंड दैट व्हेन मोर देन 1 पेनल्टी इज इम्पोज्ड, द नेट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट बी सो सिवियर सो एज टू मेक इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बियर द स्ट्रेन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये सिविल सर्विसेज मेडिकल अटेंडेंस रूल्स। An authorized medical attendant is appointed under Rule Dash of CSMA rules, Rule 2A, Rule 3.1, Rule 2E, Rule 6. The Central Services, Civil Services Medical Attendance Rules में आंसर इज बिट ए, इट इज Rule 2A. ओके, जो Rule 2A है CSMA रूल्स 1944, जो Rule 2A है इसमें क्लियरली मेंशन किया गया ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट। ओके, जिस प्लेस में द कंसर्न एम्प्लॉई इल होगा उसी प्लेस में ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट को अपॉइंट किया जाएगा, राइट। तो आंसर इज बिट ए, Rule 2A। क्वेश्चन नंबर 10, ए मेल चाइल्ड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट may receive medical attendance and treatment in a recognized women's hospital up to the age of 1 year, 6 years, 3 years, 10 years. आंसर इज बिट बी 6 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। जो मेल चाइल्ड है वो कोई भी रिकॉग्नाइज्ड वुमेन हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, मगर कितना एज तक? इट इज अप टू 6 years, राइट। आंसर इज बिट बी। तो क्वेश्चन नंबर 11, इन केस ऑफ सीरियस इलनेस और एक्सीडेंट वेयर ऑफिशियल इज अनेबल टू अप्लाई एडवांस कैन बी सैंक्शनड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डैश। यदि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का एक्सीडेंट होता है और वो सीरियस इलनेस कंडीशन में है, वो he or she is unable to apply, okay, he or she is unable to apply for medical advance, तो इस केस में जो एडवांस के लिए एप्लीकेशन कौन देगा? इट इज वाइफ, फादर ऑफ ऑफिशियल, एनी फैमिली मेंबर ऑफ ऑफिशियल, वाइफ और लीगल हेयर। आंसर इज बी डी, वाइफ और लीगल हेयर। सपोज यहाँ पर जैसे कोई मेल ऑफिशियल, सपोज वो उसका एक्सीडेंट होता है कि वो सीरियस इलनेस कंडीशन में होता है, तो he is unable to apply for medical advance, so in this case on behalf of him his wife or legal heir, okay, can apply for medical advance, right. Answer is bit D. Question number 12, power to condone delay in submission of medical claims has been delegated to। हम जानते हैं कि सपोज जब एडवांस लिया है, आप जानते हो इंडोर ट्रीटमेंट के लिए जो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा उसका 90% एडवांस हम ले सकते हैं, और जब हम अप्लाई करेंगे 10 days के अंदर वो एडवांस हमको मिलेगा। मगर आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर मोर देन 10,000 होगा तब हमको एडवांस मिलेगा, वही 90% एडवांस मिलेगा। तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। इंडोर ट्रीटमेंट के लिए जितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा उसका 90% एडवांस हमको मिलता है, और आउटडोर ट्रीटमेंट के लिए जब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन जब मोर देन 10,000 होगा तब हमको एडवांस मिलेगा। बोथ दो केसेस में एडवांस 90% मिलता है। ओके, सपोज वो एडवांस हम लिया है, तो यहाँ पर क्या है, हमको जो मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल जो सबमिट करना है उसको एक्चुअली 6 months के अंदर, ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट विद इन 6 months एक्चुअली मेडिकल रीइंबर्समेंट बिल शुड बी सबमिटेड इन द ऑफिस। यदि वो लेट हो जाता है उसको कंडोन कौन करता है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जॉइंट सेक्रेटरीज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज बीट ए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। पावर टू कंडोन डिले इन सबमिशन मेडिकल क्लेम्स हैज बीन डेलीगेटेड टू। तो हमको ये यहाँ पर याद रखना है कि आफ्टर मेडिकल ट्रीटमेंट विद इन 6 months वी मस्ट सबमिट
bill, medical bill for reimbursement within 6 months. यदि it would be late, then it must be condoned by the head of the department. Answer is bit A. So question number 13. In case of transfer from one post to another, TA entitlement shall be determined on the basis of pay of, जो traveling allowance entitlement है, यदि आपका ट्रांसफर होता है one post to another, TA entitlement shall be determined on the basis of pay of dash old post, new post, lower of the two grades, none of the above. जो दोनों पोस्ट है, जो आंसर है बीट सी, लोअर ऑफ द टू ग्रेड्स। जो दोनों पोस्ट में, एक पोस्ट में आप थे और एक पोस्ट को आपका ट्रांसफर हुआ, तो उसमें टीए एंटाइटलमेंट में एक्चुअली आपका पे लेवल को किसको लिया जाएगा? ओके, हायर पे लेवल को लिया जाएगा, लोअर पे लेवल को लिया जाएगा। हायर पोस्ट का पे लेवल ना लोअर पोस्ट का पे लेवल, लोअर पोस्ट का पे लेवल को लिया जाएगा। तो आंसर इज बीट सी, लोअर ऑफ द टू ग्रेड्स। चलो क्वेश्चन नंबर 14। For travel entitlements in case of journey by rail, except Shatabdi or Rajdhani etc., road and steamer, employees on the basis of their pay in pay level has been categorized into dash 3, 4, 5, 6. Answer is bit B, 4. अभी थोड़ा उसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। 4 कैटेगरीज, जैसे फर्स्ट है जर्नी बाय रेल और एयर विद इन द कंट्री, पे लेवल इन पे मैट्रिक्स, ट्रैवल एंटाइटलमेंट 14 एंड अबव, पे लेवल 14 एंड अबव, बिजनेस और क्लब क्लास बाय एयर और फर्स्ट क्लास एसी बाय ट्रेन, पे लेवल 12 एंड 13 एंड 13A इकोनॉमिक क्लास बाय एयर और फर्स्ट क्लास एसी बाय ट्रेन, 6 to 11 इकोनॉमिक क्लास बाय एयर, सेकेंड क्लास एसी बाय ट्रेन, 5 एंड बिलो फर्स्ट क्लास और एसी 3 और एसी चेयर कार बाय ट्रेन, राइट। तो ये रेल बाय और एयर, ये हो गया 4 कैटेगरीज में पे लेवल में। फिर हम देखेंगे जर्नी बाय रोड, जैसे माइलेज अलाउंस इसको बोलते हैं, पे लेवल 14 एंड अबव, एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस इंक्लूडिंग एसी बस, और एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स ऑफ एसी टैक्सी व्हेन द जर्नी इज एक्चुअली परफॉर्म बाय एसी टैक्सी। तो उसको सेंटेंस को देख लीजिए, एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स ऑफ एसी टैक्सी व्हेन द जर्नी इज एक्चुअली परफॉर्म बाय एसी टैक्सी, जो एसी टैक्सी में आप जो जर्नी किया उसको भी रिइंबर्स किया जाएगा। और ऑटो रिक्शा, ओन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोप्ड एटसेट्रा। 6 to 13A पे लेवल 6 to 13A सेम आज above with the exception that journeys by SC टैक्सी will not be permissible। 6 to 13A सेम है, मगर SC टैक्सी यहाँ पर परमिसिबल नहीं है। नॉर्मल टैक्सी, SC टैक्सी परमिसिबल नहीं है 6 to 13A। भाई आप बस जो है एसी बस में जा सकते हो, टैक्सी में जा सकते हो, मगर एसी टैक्सी नहीं होगा 6 to 13A। देन पे लेवल 4 and 5 एक्चुअल फेयर बाय एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस अदर देन एसी बस, यहाँ पर एसी बस नहीं होगा, एनी टाइप ऑफ पब्लिक बस में जा सकते हो मगर एसी बस में नहीं। और एट प्रिस्क्राइब्ड रेट्स फॉर ऑटो रिक्शा, फॉर जर्नीज बाय ऑटो रिक्शा, ओन कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मूव्ड, राइट। तो ये 4 कैटेगरीज हो गया। फिर हम चलेंगे एंटाइटलमेंट फॉर जर्नीज बाय सी और बाय रिवर स्टीमर फॉर प्लेसेस अदर देन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड। 9 एंड अबोव पे लेवल हाईएस्ट क्लास, जो भी हाईएस्ट क्लास है स्टीमर में उसमें जा सकते हो। 6 to 8 लोअर क्लास इफ देयर बी 2 क्लासेस ओनली ऑन द स्टीमर, स्टीमर में 2 क्लास है तो लोअर क्लास में जा सकते हो 6 to 8। 4 and 5 इफ 2 क्लासेस ओनली द लोअर क्लास, इफ 3 क्लासेस द मिडिल और सेकेंड क्लास, ओके। और इफ देयर बी 4 क्लासेस द थर्ड क्लास, 3 and बिलो लोएस्ट क्लास। तो ये भी 4 कैटेगरीज में हो गया, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 15, क्या ने हस्बैंड एंड वाइफ, ये रिलेटेड टू द लीव ट्रैवल कंसेशन क्वेश्चन है। क्या ने हस्बैंड एंड वाइफ बोथ बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड रिजाइडिंग टुगेदर क्लेम एलटीसी is subject to conditions? No, only husband can claim, only one of them can claim. Answer is bit A, is subject to the conditions। जो क्वेश्चन पूछा है कि बोथ हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, वो एक ही साथ रहते हैं, क्या वो एलटीसी क्लेम कर सकते हैं? क्या कंडीशन है? इज सब्जेक्ट टू कंडीशंस, उसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन देख लीजिए। व्हेन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स दे कैन डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन्स इंडिपेंडेंटली। वो सेपरेट होम टाउन्स इंडिपेंडेंटली वो डिक्लेयर कर सकते हैं। हस्बैंड उसका होम टाउन डिक्लेयर कर सकता है और वाइफ सेपरेटली उसका होम टाउन डिक्लेयर कर सकता है। दे कैन क्लेम एलटीसी फॉर देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज। हस्बैंड उसका फैमिली के लिए एलटीसी ले सकता है और सेपरेटली वाइफ उसका फैमिली के लिए एलटीसी ले सकता है। While the husband can claim for his parents, minor brothers, sisters, the wife can avail for her parents, minor brothers or sisters. Either of the parents can claim the concession for the children in a particular block. Particular block में जो either, यदि children के लिए husband claim किया तब wife claim नहीं कर सकता, यदि children के लिए wife claim किया तब husband claim नहीं कर सकता।
द हस्बैंड और वाइफ हु अवेल्स LTC एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, यदि दोनों आज ए मेंबर ऑफ द फैमिली दोनों एक साथ LTC में जाते हैं तो वो सेपरेटली नहीं ले सकते। जैसे हस्बैंड वाइफ जा सकते हैं एक ही साथ फैमिली मेंबर के हिसाब से, तो वहाँ पर वाइफ क्लेम सेपरेटली वाइफ क्लेम नहीं कर सकता। द हस्बैंड और वाइफ हु अवेल्स LTC एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द स्पाउस कैन नॉट क्लेम इंडिपेंडेंटली फॉर सेल्फ, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एंटाइटलमेंट ऑफ LTC टू होम टाउन टू अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट। जो अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए जो एंटाइटलमेंट ऑफ LTC है वो यहाँ पर ऑप्शन है एवरी ईयर, अल्टरनेट ईयर्स, वंस इन 3 years, वंस इन 2 years। यहाँ पर जो आंसर है एवरी ईयर, आंसर इज बीट ए। उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन। एन एम्प्लॉई इंक्लूडिंग अनमैरिड हैविंग हिज फैमिली एट हिज होम टाउन कैन अवेल LTC फॉर हिमसेल्फ अलोन एवरी ईयर इंस्टेड ऑफ हैविंग इट फॉर बोथ सेल्फ एंड फैमिली वंस इन 2 years। हम जानते हैं कि जो 4 year ब्लॉक पीरियड होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है 2 years। तो एवरी 2 years में हम हमारे फैमिली के साथ हम एक सपोज 4 years में फर्स्ट ब्लॉक जो है 2 years है और उसका सेकेंड जो है वो अगेन 2 years है 4 ब्लॉक पीरियड में। सपोज फर्स्ट जो 2 years है हम हमारा फैमिली के साथ होम टाउन जाएंगे तो सेकेंड जो 2 years होगा उसमें हम ऑल इंडिया टूर में जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग अनमैरिड हैविंग हिज फैमिली एट हिज होम टाउन कैन अवेल LTC फॉर हिमसेल्फ अलोन एवरी ईयर इंस्टेड ऑफ हैविंग इट्स फॉर बोथ सेल्फ एंड फैमिली वंस इन 2 years। However, एन एम्प्लॉय अवेलिंग होम टाउन LTC एवरी ईयर, यदि एक एम्प्लॉय एवरी ईयर होम टाउन LTC लेता है तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। कैरी फॉरवर्ड क्या है? जैसे ये जो पीरियड हमारा था 18, 19, 20, 21, 18 to 21, सपोज अब 18, 19 में हम होम टाउन LTC लिया था जो फर्स्ट 2 था, अभी जो नेक्स्ट चल रहा है 18, 19 हो गया, फिर 20, 21, ओके भाई 4 year में ये सेकेंड पार्ट चल रहा है। 20, 21 में अभी ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, हम 20, 21 में ऑल इंडिया टूर जाएंगे। मेरे एग्जाम्पल में क्योंकि फर्स्ट 2 ब्लॉक पीरियड में हम होम टाउन गए थे हमारा फैमिली के साथ, अभी हम ऑल इंडिया टूर के लिए एलिजिबल है। सपोज जो 2020, 2021 इसमें हमको लेना है ऑल इंडिया टूर, सपोज हम 21 में नहीं लिए तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा 22 में, उसको ले सकते हैं। मगर यहाँ पर एवरी ईयर आप सपोज होम टाउन LTC लेते हो तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, राइट। चलो क्वेश्चन 17, इन जनवरी एवरी ईयर द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल हैंड ओवर हीज और हर सर्विस बुक कॉपी टू हीज और हर ऑफिस फॉर अपडेशन व्हिच शुड बी रिटर्न विद इन डैश डेज। तो जैसे अभी जो सर्विस बुक के मामले में है वो एक डुप्लीकेट कॉपी होता है, जो फर्स्ट कॉपी वो ऑफिस में रहता है और एक कॉपी एम्प्लॉय के पास रहता है। एवरी ईयर जनवरी में एम्प्लॉय उसका कॉपी को, जो सेकेंड कॉपी होता है, फर्स्ट कॉपी ऑफिस में रहता है, सेकेंड कॉपी कंसर्न एम्प्लॉय के पास है, तो एवरी ईयर जनवरी में एम्प्लॉय वो हैंड ओवर करता है उसका कॉपी को ऑफिस में अपडेशन के लिए। तो वो जब रिसिप्ट करेगा उसको ऑफिस, सो विद इन हाउ मेनी डेज अगेन इट वुड बी रिटर्न बैक। सो यहाँ पर जो रिटर्न होगा वो 30 days होगा। इन जनवरी एवरी ईयर द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल हैंड ओवर हिज और हर सर्विस बुक कॉपी टू हिज और हर ऑफिस फॉर अपडेशन व्हिच शुड बी रिटर्न विद इन 30 days। आंसर इज बीट डी। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे सर्विस बुक के ऊपर, बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो किसके लिए सर्विस बुक ओपन होगा? नेसेसरी फॉर ऑल नॉन गेजेटेड ऑफिशियल्स एक्सेप्ट दोज अपॉइंटेड अगेंस्ट टेम्पोररी वैकेंसीज ऑफ नॉट मोर देन ए ईयर। कुछ क्या है, टेम्पोररी वैकेंसी है और लेस देन 1 year के लिए वो अपॉइंटमेंट उनका होता है, एडहॉक अपॉइंटमेंट लेस देन 1 year के लिए कुछ वैकेंसी पोस्ट में, उनके लिए सर्विस बुक ओपन नहीं होगा। एंड फॉर ऑल गेजेटेड ऑफिसर्स द सर्विस बुक विल बी ओपन फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अपॉइंटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। और ये सप्लीमेंट्री रूल्स 196, 197, ये रूल को याद रखना है। सप्लीमेंट्री रूल्स 196, 197। इट शुड बी मेंटेन इन डुप्लीकेट, अभी मैं बोला था फर्स्ट कॉपी शुड बी रिटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। फर्स्ट कॉपी उसको रिटर्न कौन करेगा? हेड ऑफ द ऑफिस रिटर्न करेगा। एंड सेकंड कॉपी गिवन टू द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर सेफ कस्टडी, सेकंड कॉपी हमको मिलेगा। जनवरी एवरी ईयर द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल हैंड ओवर हिज कॉपी टू हिज ऑफिस फॉर अपडेशन व्हिच शुड बी रिटर्न विद इन 30 days ऑफ इट्स रिसिप्ट। हमारा जो कॉपी है वो एवरी ईयर जनवरी में हम ऑफिस को हैंड ओवर करेंगे अपडेशन के लिए, और वो 30 days में वो रिटर्न होगा। जिस डेट में वो रिसिप्ट होगा ऑफिस उसको रिसिप्ट करेगा, विद इन 30 days इट मस्ट बी रिटर्न बैक। यदि हमारा जो कॉपी है वो लॉस हो जाता है, फी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ए लॉस्ट कॉपी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इज ₹500। हमको अगेन 500 पेनल्टी होता है कॉपी को रिसीव करने के लिए यदि कॉपी लॉस्ट हो जाता है। मेंटेनेंस ऑफ सर्विस बुक
in electronic format in e-service book module available under the e-office mission mode project has been implemented. ये सप्लीमेंट्री रूल 198 में है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा सप्लीमेंट्री रूल 198। अभी जो ई ऑफिस मिशन मोड में हमारा ई सर्विस बुक अभी वो उसका अप टू डेट हो रहा है, राइट, वो सप्लीमेंट्री रूल 198 में। द सर्विस बुक ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट डिपार्टमेंट टू प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन। आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देके जब आप पेरेंट डिपार्टमेंट को और कोई दूसरा डिपार्टमेंट को जाते हो तब इस केस में सर्विस बुक वो ट्रांसफर होगा आपका पेरेंट डिपार्टमेंट से प्रेजेंट डिपार्टमेंट को, ओनली इन केस ऑफ टेक्निकल रेजिग्नेशन। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ था सर्विस बुक के ऊपर। नेक्स्ट वन, एन अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ कैन बी मेड विद द सैंक्शन ऑफ ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इफ एन एम्प्लॉय मेक्स ए रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड विद इन डैश ईयर्स ऑफ हिज एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस। यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में एंट्री किए और आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ रॉन्ग आ गया, सपोज यू हैव डिटेक्टेड दैट डेट ऑफ बर्थ इज रॉन्ग वन, ओके, तब आपको मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का सैंक्शन लेना है। और ये जो क्वेश्चन पूछा है, इफ एन एम्प्लॉय मेक्स ए रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड विद इन डैश ईयर्स ऑफ हिज एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, आप गवर्नमेंट सर्विस में एंट्री किया है तो उससे कितने साल के अंदर आप उसको अप टू डेट करने के लिए कि करेक्ट करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पर जो आंसर है बीट सी है, 5 ईयर्स। फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का रूल है, राइट। तो यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन है। एन अल्टरेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ कैन बी मेड विद द सैंक्शन ऑफ ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट और एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन यूनियन टेरिटरी इफ एन एम्प्लॉय मेक्स ए रिक्वेस्ट इन दिस रिगार्ड विद इन 5 ईयर्स ऑफ हिज एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस। तो आप जब गवर्नमेंट सर्विस में एंट्री किया विद इन 5 ईयर्स आप चेक किया कि कुछ रॉन्ग है आपका डेट ऑफ बर्थ में, तो विद इन 5 ईयर्स आफ्टर द एंट्री you must approach to the ministry or department or union territory में approach to an administrator, okay, for rectification. It is clearly established that a genuine bona fide mistake had occurred. genuine mistake है तो आप डिटेक्ट किया तब आप अप्रोच करोगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए। The date of birth so altered would not make him ineligible to appear in any examination in which he had appeared. यदि आप कोई एग्जामिनेशन अपियर किया है तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है जो चेंज होगा उसमें कोई आप इनएलिजिबल नहीं होंगे, ओके। ये पॉइंट्स को थोड़ा रिमेंबर करना है, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 19, कुछ पर्सनल कंप्यूटर एडवांस के ऊपर क्वेश्चन है। पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बी अलाउड डैश टाइम्स इन एंटायर सर्विस। हम कंप्यूटर एडवांस ले सकते हैं, पीसी एडवांस हम ले सकते हैं। तो एंटायर सर्विस में हमको कितने बार हमको एडवांस मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। जो कंप्यूटर एडवांस मिलेगा हमको कितने बार मिलेगा, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। एक्चुअली 5 टाइम्स हमको एडवांस मिलेगा। आंसर इज बिट डी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए पर्सनल कंप्यूटर एडवांस के ऊपर ₹50,000 और एक्चुअल प्राइस ऑफ द पीसी व्हिच एवर इज लोअर, ओके। चाहे पीसी का जो प्राइस होगा 50,000 होगा और एक्चुअल प्राइस होगा जो लोअर होगा। सैंक्शन अथॉरिटी इज डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ये सैंक्शन अथॉरिटी है, राइट। ना एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एडवांस फॉर द परचेज ऑफ ए पर्सनल कंप्यूटर शैल बी मेड इन फॉर्म 6 ऑफ द कंपेंडियम। जो कंपेंडियम में जो फॉर्म 6 है तो वहाँ पर फॉर्म 6 एक एप्लीकेशन होता है, उसको आप एप्लीकेशन को भरना पड़ेगा और डिपॉजिट करना पड़ेगा एडवांस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्म 6 ऑफ द कंपेंडियम। ए सेकेंड और सब्सिक्वेंट एडवांस फॉर द परचेज ऑफ ए पीसी कैन नॉट बी ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रायल ऑफ द अर्लियर एडवांस। यदि आप कोई एडवांस लिया है तो एडवांस से आप 3 ईयर्स के बाद, 3 ईयर्स कंप्लीट के बाद और एक एडवांस आप ले सकते हो। आप एक एडवांस लिया है सो विद इन 3 ईयर्स आप सेकेंड एडवांस के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। टू मेक मॉडल एंड नंबर ऑफ द पीसी शुड बी एंटर्ड इन फॉर्म 4 ऑफ द कंपेंडियम। जो पीसी का नंबर है उसका मॉडल क्या है वो एक फॉर्म 4 है वो मेंशन होगा, मॉर्टगेज के लिए वो मेंशन होकर रहेगा कि यही मॉडल का पीसी और यही नंबर का पीसी के लिए एडवांस लिया है, ओके, कंसर्न एम्प्लॉय। रीपेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट मोर देन 150 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। जो आप रीपेमेंट करोगे वो कितना होगा, 150, नॉट मोर देन 150 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ओके। मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट्स 150। टोटल रिकवरीज ऑन अकाउंट ऑफ ऑल एडवांसेज, जो भी एडवांस लिया है, जैसे कि जीपीएफ एडवांस है, जनरल प्रोविडेंट फंड, जो जिनके लिए पुराना पेंशन लागू है उनका जीपीएफ अकाउंट है वो एडवांस ले सकते हैं।
कि आप कोई लोन के लिए कुछ लोन्स एंड एडवांसेस ऐसा कुछ एडवांस लिया है, तो ये पीसी के लिए एडवांस लिया, तो टोटल सब एडवांस मिलाकर वो आपका एमोलूमेंट्स का 50% से ज़्यादा नहीं होगा। टोटल रिकवरीज ऑन अकाउंट ऑफ ऑल एडवांसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर एडवांस टेकन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल एमोलूमेंट्स। जो रिकवरी होगा, जितना भी एडवांस लिया है, चाहे आप ओल्ड पेंशन में हो, जीपीएफ एडवांस लिया है और ये कंप्यूटर एडवांस लिया, कोई हाउस बिल्डिंग एडवांस लिया, तो जो भी एडवांस है लिया है उसका रिकवरी होता है, मंथली रिकवरी, तो वो टोटल एमोलूमेंट्स का 50% से ज़्यादा नहीं होगा। राइट, देन क्वेश्चन नंबर 20, ये प्रोविजनल पेंशन इज मेंशन्ड अंडर डैश सीसीएस पेंशन रूल्स 1974, इट इज रूल 55, रूल 38, रूल 64 और रूल 41। ये रूल 64 जो प्रोविजनल पेंशन है, तो जो रूल 64 में मेंशन है, सपोज ऑफिस के वजह से आपका पेंशन डिले हो गया, तो कितना मंथ तक डिले होगा? अप टू मैक्सिमम 6 मंथ्स तक डिले हो सकता है आपका रिटायरमेंट के बाद। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो आफ्टर रिटायरमेंट अप टू 6 मंथ्स इट कैन बी डिलेड, नॉट मोर देन दैट। तो ये रूल 64 में मेंशन है प्रोविजनल पेंशन। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज़ रूल 64। मगर ये जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 या 1974 थोड़ा गलती हो गया, तो प्लीज़ फॉरगिव मी, इट इज़ 1972, सीसीएस पेंशन रूल 1972। तो चलो अभी देखेंगे अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 प्रोविजनल पेंशन वेयर डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में भी पेंडिंग। यदि आप जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है और उस समय जुडिशियल और यानी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चल रहा है, तब आपको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। वो किस रूल में है? सीसीएस पेंशन रूल 1972 का किस रूल में है? वो रूल 69 में है। तो जो रूल 69 में जो प्रोविजनल पेंशन है, वो इट इज़ रिलेटेड टू द डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। यदि डिपार्टमेंटल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स चल रहा है, तब आपको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। आफ्टर कंप्लीशन आपको फुल पेंशन मिलेगा। मगर जो रूल 64 में है, ऑफिस के वजह से आपका पेंशन डिले हो गया, मैं अभी बताया, वो डिले हो सकता है अप टू 6 मंथ्स, उस केस में प्रोविजनल पेंशन जो मिलेगा वो रूल 64 में है। और सीसीएस पेंशन रूल 1972, वो गलती से जो रूल 20 में वो 1974 में लिख दिया, प्लीज़ फॉरगिव मी। क्वेश्चन नंबर 22, फैमिली पेंशन इज पेएबल टू द फैमिली ऑफ डैश। जो फैमिली पेंशन कब मिलता है? ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु डाइज व्हाइल इन सर्विस। ये करेक्ट है, जब सर्विस में गवर्नमेंट एम्प्लॉई का डेथ होता है तब फैमिली पेंशन मिलेगा। और गवर्नमेंट पेंशनर हु डाइज आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद यदि गवर्नमेंट पेंशनर का डेथ होता है तब फैमिली पेंशन मिलता है। तो दोनों बीट सी बोथ ए एंड बी, बीट डी नॉन ऑफ द अबव, वो दोनों करेक्ट है। बीट सी आंसर, बोथ ए एंड बी, आंसर इज बीट सी, बोथ ए एंड बी। ओके, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जब सर्विस में होता है, उसका डेथ होता है, फैमिली पेंशन मिलता है। और जो गवर्नमेंट पेंशनर उसका डेथ होता है तब फैमिली पेंशन मिलता है। 23 को चलेंगे। व्हाट इज द मिनिमम रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड? ये रिलेटेड टू द सीसीएस पेंशन रूल 1972। ये अभी तो नहीं, अभी न्यू पेंशन स्कीम चल रहा है 1/1/2004 से। तो जो जीपीएफ है वो अप टू आप मान लो 31 दिसंबर 2003, जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड, तो बेसिकली द पेंशन। तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ का सैलरी से जो डिडक्ट होता है, जो जीपीएफ शेयर है, वो मिनिमम कितना है? मिनिमम 6% ऑफ द एमोलूमेंट्स। और यहाँ पर जो एमोलूमेंट होगा ओनली बेसिक पे होगा, डीए नहीं होगा, डीए इज नॉट इंक्लूडेड। तो मिनिमम 6% है, मैक्सिमम 100% होगा। आप बोलोगे पूरा एमोलूमेंट्स में जीपीएफ में डालना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मिनिमम है 6% ऑफ एमोलूमेंट्स एंड मैक्सिमम इट इज 100%। ओके, यहाँ पर मिनिमम का क्वेश्चन पूछा है, बीट ए, आंसर इज बीट ए। यहाँ पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन जीपीएफ के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स में दिया, इट मीन्स ऑलरेडी हैव रिटन, यू चेक। द जीपीएफ रूल्स एप्लीकेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003, क्योंकि उसके बाद अभी न्यू पेंशन स्कीम चल रहा है। तो जो एमोलूमेंट्स होगा 6%, मिनिमम एमोलूमेंट्स। ओके, 6% होगा ओनली बेसिक पे, डीए इंक्लूड नहीं होगा। मैक्सिमम 100% ऑफ एमोलूमेंट्स शुड बी फिक्स्ड एट नॉट लेस देन 6% ऑफ हिज और हर एमोलूमेंट्स ऑन द 31 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। जो प्रीसीडिंग ईयर है 31 मार्च में डिसाइड हो जाएगा कि कितना एमोलूमेंट्स का कितना परसेंट आप आपका जीपीएफ में डालना चाहते हो। ओके, प्रीवियस ईयर 31 मार्च तक आपको फाइनल कर देना है कि एमोलूमेंट्स का कितना परसेंट आपको देना है। एंड इन केस ऑफ न्यू सब्सक्राइबर्स टू द एमोलूमेंट्स ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस डेट में आप फंड में ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें आपको डिसाइड करना है कि एमोलूमेंट्स का कितना परसेंट आप दोगे, मगर मिनिमम 6% है। सब्सक्रिप्शन में भी इंक्रीज्ड ट्वाइस। आप ईयर में सपोज आप दे दिया कोई पर्टिकुलर एमोलूमेंट्स का इतना परसेंट आप डिडक्ट करने के लिए दे दिया, सपोज प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर
31 मार्च में, मगर आप बढ़ा सकते हो, ट्वाइस बढ़ा सकते हो, 2 बार बढ़ा सकते हो ड्यूरिंग द ईयर, और 1 बार कम कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन में भी इंक्रीज ट्वाइस एंड रिड्यूस्ड वंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार बढ़ा सकते हो, 1 बार भी कम कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन टू द फंड शैल बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन पीरियड में आपको जो जीपीएफ शेयर है आपको देना नहीं पड़ेगा, वो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, तो वो इट मीन्स आप नहीं दोगे जीपीएफ जो शेयर है। एंड द ऑप्शन ऑफ द जीएस, कब गवर्नमेंट सर्वेंट का ऑप्शन होगा? लीव ऑन हाफ पे। आप हाफ पे में लीव लिया कि लीव विदाउट पे, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है वो विदाउट पे है, विदाउट सैलरी, एंड डाइज नॉन। जो सपोज आपका सर्विस ब्रेक हो गया, तो उस केस में आपके लिए ऑप्शन है कि आप ऑप्शन दोगे, हाँ मैं मेरा जीपीएफ शेयर में जस्ट यू डिसाइड, ओके सपोज यू हैव गिवन ऑप्शन यस इट मीन्स जीपीएफ शेयर विल बी डिडक्टेड, कि आप ऑप्शन दोगे नहीं मेरा जीपीएफ शेयर डिडक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन वाला आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर केस में प्रॉपर्शनेट सब्सक्रिप्शन टू बी रिकवर्ड फॉर द पीरियड ऑफ ड्यूटी एंड एनी लीव अदर देन एचपीएल और यूएल। एचपीएल हाफ पेड लीव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अलावा और जो भी आप लीव ले रहे हो उसका प्रॉपर्शनेट सब्सक्रिप्शन आपका सैलरी से डिडक्ट होगा। सब्सक्रिप्शन रिकवरी टू बी स्टॉप्ड 3 months बिफोर रिटायरमेंट ऑन सुपर अन्वेषण। यदि आपका जो रिटायरमेंट सुपर अन्वेषण है पीरियड है, सो जस्ट 3 months बिफोर सुपर अन्वेषण आपका सब्सक्रिप्शन रिकवरी नहीं होगा, वो बंद हो जाएगा। और जीपीएफ एडवांस रिकवर्ड फ्रॉम सैलरी एट द ऑप्शन ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ सस्पेंशन। आप जो जनरल प्रोविडेंट फंड है आप एडवांस ले सकते हो, जीपीएफ एडवांस, तो आप एडवांस लिया है तो आपका जो सस्पेंशन पीरियड में आपके लिए ऑप्शन है, आप ऑप्शन दोगे हाँ मेरा जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है उसमें हाँ मेरा जो जीपीएफ एडवांस हो वो तो रिकवरी होगा, जो एडवांस लिया है आप वो तो रिकवरी होगा ना मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से, तो आपका ऑप्शन होता है। आप ऑप्शन दोगे हाँ मेरा जीपीएफ एडवांस जो रिकवरी है वो डिडक्ट होगा तो होगा, ऑप्शन में मना करोगे तो वो डिडक्ट नहीं होगा। ये सब चीज़ को ये जीपीएफ के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स आपको दिया, उसको थोड़ा आप देख लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 24, हु हैज़ द पावर्स ऑफ interpreting the fundamental rules? C&AG, Comptroller and Auditor General, President of India, Ministry of Finance, Prime Minister of India. Answer is bit B. President of India has the powers of interpreting the fundamental rules. Answer is bit B. चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका। Please my friends subscribe my channel so that you can get notification for my upcoming videos. It is not easy task, so only for your help just I am doing this video for your help. Please subscribe my channel. Foreign service means service in which a government servant receives his pay with the sanction of the government from. जो फॉरेन सर्विस में जैसे आप कोई सपोज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को चला गया, कि कोई कॉरपोरेशन को चला गया, और कोई सपोज ऑटोनोमस बॉडी को चला गया, तो वो फॉरेन सर्विस होता है। उसमें आपको जो पे, जो आपको सैलरी मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, एनी सोर्स अदर देन द अबव। तो आंसर इज बी डी, एनी सोर्स अदर देन द अबव। ओके, जो बेसिकली हमको सैलरी मिलता है वो कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है। यूनियन टेरिटरी में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, स्टेट में द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। मगर फॉरेन सर्विस केस में कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलेगा, एनी सोर्स अदर देन द अबव। आंसर इज बिट डी। ये आज 25 क्वेश्चन था। So my friends, again my next video, next series I will bring, series 6. So please subscribe my channel, Asit Government Rule Guru. Thank you. Namaskar to all of you.